Everyone note down. I'm starting the first doubt of today's class. It is series number 4. Here we find that we are given y square equals to 4x, which represents a non-linear equation. So graphically, it is a curve. Okay, it represents a non-linear equation. So graphically, it represents a curve. So we have a curve. At the point given on the curve, which is a by m square, comma 2a by m. At this point, we have to find out the equation of tangent and equation of normal. So my first task is, you know that equation of tangent निकालने के लिए अपने लोगों को एक point पता होना चाहिए, and the point is clearly the point of tangency. The point is clearly the point of tangency. Tangency मतलब जिस पे हम लोग ने कर्व पे, जिस point पे कर्व पे हम लोग ने tangent draw किया, मैं उस point को point of tangency बोल रहा हूँ. अब देखो इस point तो मुझे पता है x1 y1. हम लोगों को क्या नहीं पता है? हम लोग को इस tangent का slope नहीं पता है. अब slope कैसे निकालेंगे ध्यान? You will be differentiating equation 1 with respect to x to get dy by dx. So on the left hand side we have dx of y square. On the right hand side we have 4a, which is a constant. You keep it outside and we will have dx of x. Now tell me, what is ddx of y square? Yes, what is ddx of y square? So 2y to the power dy by dx is 2y to the power 2 minus 1 and then y का further differentiation. Alright, जो अभी मैंने बताया. ddx of x is 1. So we find that dy by dx is equal to 4a by 2y. इसको reduce करके हम लोग यहीं पे लिख देते हैं 2a by y. But actually our task is to find out dy by dx at the point which is a by m square comma 2a by m, because इस point पे ही अपने लोगों को tangent का slope निकालना है, तो उस point को put करना पड़ेगा. 2a cancel हो गया, so we find that dy by dx at a by m square comma 2a by m is equal to m, which is the slope of tangent. जो पॉइंट पे हम लोग ने tangent ड्रॉ किया है, उस पॉइंट पे स्लोप ऑफ tangent क्या है? m है. Therefore, the required equation of tangent is given by y minus y1 equals to m, which is m itself, into x minus x1. Take LCM. यहाँ पे भी LCM ले लेंगे. अब देखो यहाँ पे m है, ये m स्क्वायर है, तो एक m कैंसिल हो गया और यहाँ से एक m कैंसिल हो गया. So we have my minus 2a equals to m square minus x minus a, which is m square x minus my plus a equals to 0. This is the equation of tangent. Similarly, equation of normal will be what? If the slope of tangent is m, what will be the slope of normal? What will be minus 1 by m. So I think point तो पता ही है और ये tangent का slope पता ही चल गया, तो slope equation भी निकल जाएगा. तो फटाफट एक बार ये चीज को कॉपी करो. अगर कॉपी हो गया तो हम नेक्स्ट समय मूव करेंगे. मतलब अगर तुम लोग को ऑलरेडी तुमने कर लिया. So everyone note down question number 6. In this you are given x square by a square minus y square by b square equals to 1. And इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट है which is a sec theta comma b tan theta. इस पॉइंट पे हम लोग को tangent का इक्वेशन निकालना. तो अगेन सेम चीज, सब एक ही है देखा जाए. हम लोग को यहाँ पे पॉइंट पता ही है जिससे
टेंजेंट ड्रॉ किया हम लोग, मतलब पॉइंट मुझे पता है x और y, अब सिर्फ हमको स्लोप निकालना। तो स्लोप निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे देखने एक बार। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to x. Now before I mean differentiating, can you tell me what is this a square and y square, b square? What is this? It's a variable, it's a constant because y और x के अलावा बाकी सब कुछ constant है। y और x differentiating y मतलब y is a variable with respect to x means x is also changing, it's x is also variable. So we are differentiating y with respect to x means y और x के अलावा बाकी सब कुछ constant है। तो देखो एक बार ध्यान से, यहाँ पे हम 1 by a square को बाहर रख देंगे into ddx of x square, 1 by b square को बाहर रख देंगे ddx of y square, और 1 का डिफरेंशिएशन 0। So this is 2x by a square minus 2y by b square into dy by dx equals to 0. माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया। So dy by dx is x b square x divided by a square y, all right, and dy by dx तो आ गया, चलो ठीक है। हम लोगों को स्लोप निकालना है एक पॉइंट पे, वो पॉइंट क्या है? दैट पॉइंट इज a sec theta comma b tan theta. So at the place of x put b tan theta, at the place of y put, sorry, at the place of x put a sec theta. So you will have b square into a sec theta divided by, at the place of y put b tan theta. So it is a square into y, the value of y is b into tan theta. अब देखो ध्यान से, b कैंसिल हो गया, a कैंसिल हो गया, तो क्या बचा बताओ? तो b sec theta by a tan theta. This is the slope of tangent. ठीक है, this is the slope of tangent at the given point, which is a sec theta comma b tan theta. अब बहुत लोग इसमें क्या कर रहा होगा कि इसको सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर रहा होगा, बट मैं नहीं कर रहा हूँ। क्यों बताओ? क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट है, पॉइंट भी तुम्हारा सेक और tan में ही, तो रख छोड़ देते ना, लास्ट में हो सकता है कि कुछ सिंपलीफाई करके ज्यादा बेटर रिजल्ट आ जाए। बट अगर मान लो तुम साइन कॉस में भी कन्वर्ट कर दो तो रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल रॉन्ग नहीं है, वो भी उतना ही करेक्ट है जितना मैं सेक और tan में रख के करूँ, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही है, ठीक है ना? तो एक बार ध्यान देना। Therefore the required equation of tangent is y minus y1 equals to m into x minus x1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफिकेशन बाकी है। a tan थीटा को y minus b tan थीटा से मल्टीप्लाई करो और b sec थीटा को दोनों से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा b sec थीटा into x plus into minus is minus b into a is ab, sec theta into sec theta is sec square theta। सेम वे यहाँ पे हो जाएगा a tan theta into y minus ab tan square theta। अब बस हम लोग करना क्या है, सारे टर्म्स को एक तरफ ले लेना है, क्योंकि अब हम लोग का काम है कि ax plus by plus c equals to 0 के फॉर्म में जरूर एक्सप्रेस करना चाहिए, ठीक है? इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना हमारा काम। तो देखो ध्यान से, b sec theta यहाँ पे into x, b sec theta into x, इसको राइट में ले जाए तो ये हो जाएगा a tan theta into y, इसको भी राइट में ले जाते हैं तो ये माइनस ab sec square theta तो ऑलरेडी है, और ये जब राइट में जाएगा तो ab tan square theta हो जाएगा इक्वल्स टू 0। कोई बता सकता है यहाँ पे और फर्दर सिंपलीफिकेशन किया जा सकता है या नहीं? सर वी कैन टेक ab कॉमन, माइनस ab अगर हम कॉमन ले लें तो बच जाएगा sec square theta minus tan square theta। And what is sec square theta minus tan square theta? 1। तो आंसर हो गया तुम्हारा रिड्यूस फॉर्म में b sec theta x minus a tan theta into y minus ab equals to 0। ठीक है, अगर तुम्हारा आंसर साइन कॉस में है तो डरो मत, तो टेंशन मत लो, आंसर वही है। मुझे लगता है कि अगर तुम्हारा आंसर साइन कॉस में है ना, तो अगर तुम उसको cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो तो तुम्हारा यही आंसर है, ठीक है? एक ही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर दूसरा बात है कि अगर हमको स्लोप को इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है तो बस इसका रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर दो, स्लोप आ गया, फिर पॉइंट लिखो।
Now the next sum is question number 7. ये काफी आसान ही था ये वाला सम तो। इसमें हम लोग को कर्व दिया हुआ है, ठीक है, कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है। कर्व के ऊपर पॉइंट का तो x कोऑर्डिनेट पता है, y कोऑर्डिनेट नहीं पता है। कर्व के ऊपर जो पॉइंट है उसका हम लोग को सिर्फ x कोऑर्डिनेट पता है और उस पॉइंट का मुझे y कोऑर्डिनेट नहीं पता है, ठीक है। But the point is 2, y1 and where y1 is greater than 0. तो ध्यान से एक बार देखिए। सबसे पहला चीज कि ये कर्व है, ठीक है। कर्व के ऊपर मुझे एक पॉइंट का सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए तो यहाँ पे मुझे x कोऑर्डिनेट पता है, y कोऑर्डिनेट नहीं पता है। It is denoted with y. So can you tell me, can you help me? How will I find out its corresponding y coordinate? Anyone? So placing the value of x in the equation. So placing the value of x in the equation and solving to determine the value of y will give you the value of y1 because जो तुमने x का वैल्यू पुट किया है 2, उससे जो corresponding वैल्यू मिलेगा y का, this is y1, ठीक है। या फिर हम ये कर सकते हैं, मतलब हम x के जगह 2 लगा के जो सॉल्व करेंगे वो y मिलेगा, वो y1 होगा। या फिर हम ये कर सकते हैं कि since 2, y1 एक ही बात है, y1 lies on the curve, so जहां पे x है वहां पे हम 2 लगा देंगे, जहां पे y है वहां पे y1 लगा देंगे। ये क्या हो जाएगा 64 plus 9y1 square equals to 144, that is y1 square equals to 8080 by 9। अगर y1 square इतना है तो y1 क्या होगा प्लस माइनस √80 divided by 3। 80 can be further simplified and written as what? 5 into 16. 5 is not a perfect square. 16 is a perfect square, so we can write this as 4√5. Now, अब देखो यहाँ पे एक और चीज मेंशन किया हुआ है कि y1 का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो अगर y1 का वैल्यू मोर देन 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग यहाँ पे जो पॉजिटिव वैल्यू है वो हम लोग लेंगे और नेगेटिव वैल्यू को यहाँ रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद √80 को हम क्या लिख सकते हैं 4√5, so 4√5 by 3 और यहाँ लिख देना since y1 is greater than 0 that's why you are accepting the positive value, ठीक है। अपने लोग पॉजिटिव वैल्यू क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? बिकॉज़ ये कंडीशन ही दिया हुआ है। कंडीशन नहीं दिया रहता तो हम दोनों वैल्यूज लेते और 2 पॉइंट पे हम टेंजेंट का इक्वेशन निकालते, बट क्योंकि यहाँ पे एक ही पॉइंट है, अब हम एक पॉइंट पे दैट इज 2, 4√5 by 3 पे अब हम टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे। अब बताओ तो टेंजेंट के इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट। अच्छा एक बात बताओ सबको, क्या ये वाले पॉइंट में डाउट था या इसके आगे डाउट है? बताओ तो। So it's just the x square y square thing, so that's what I did. Okay, so I think अब हो जाएगा ना 3 वाला सम, ठीक है। हमारा वो पॉइंट भी क्लियर है कि कैसे हम लोग x स्क्वायर y स्क्वायर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं और तुम्हारा ये भी क्लियर है कि पॉइंट, ठीक है। तो आई थिंक आगे हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट सम बताता हूं, सम नंबर 10 देखते हैं। ओके, सम नंबर 10। नाउ सी सम नंबर 10, ठीक है। सम नंबर 10 में हो सकता है बहुत लोगों को डाउट हो, तो मैं एक बार सम नंबर 10 भी बताया। सी सम नंबर 10 इज y equal to sin 2x plus cot x plus 2 का होल स्क्वायर। अब सेम यहाँ पे अपने लोग को एक कर्व दिया गया है और इस कर्व पे जो पॉइंट है उस पॉइंट का मुझे x कोऑर्डिनेट सिर्फ पता है which is 5/4, बट मुझे उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट it's 5, बट मुझे उसका कॉरेस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट नहीं पता। तो हम लोग कैसे निकालेंगे उसका y कोऑर्डिनेट? When the value of x is 5/2, put the value of x equals to 5/2. 5/3. No, it's not 5/2. No, sir, 5/2. Sir. 5/2. So यहाँ पे अगर हम 5/2 लगा देते, ये क्या होगा sin 2 into 5/2 will become pi, ये हो जाएगा cot pi/2 plus 2। What is the value of sin pi? Sin pi मतलब sin pi मतलब 180, and what is the value of sin 180? It is 0। तो यहाँ पे 0 लगा दो। cot 90 डिग्री कितना होता है? 0 होता है। इस पूरा का स्क्वायर कितना हो जाएगा?
मतलब हमको पॉइंट मिल गया 5/2, इस पॉइंट पे जो टैंजेंट है, इस टैंजेंट का अपने लोग को इक्वेशन निकालनी। इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे ना, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन y with respect to x. So we have ddx of y equals to ddx of sin 2x plus cot x plus 2 का होल स्क्वायर। Now tell me everyone what is ddx of, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, यहाँ पे अपने लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कोई बता सकता है? So chain rule. So first of all we will assume this as x and we'll apply the formula n x to the power n minus 1। उसके बाद जिस पार्ट को हम लोग assume किए उसका फर्दर डिफरेंशिएशन। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये हो गया 2 sin 2x plus cot x plus 2। What is ddx of sin 2x? cos 2x ddx of 2x. sin 2x will be 2x को assume करना तो ये हो गया cos 2x और फिर 2x का फर्दर डिफरेंशिएशन। तो what is ddx of 2x का फर्दर डिफरेंशिएशन? 2 कांस्टेंट है बाहर, ddx of x 4। So we have 2 cos 2x, cot x का डेरिवेटिव माइनस cos x square x एंड 2 का डेरिवेटिव 0। और उसके बाद हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को dy by dx निकालने के बाद अपने लोग को पॉइंट पुट करना है, y to determine the slope of tangent। So dy by dx at pi by 2 comma 4 will be how much? At the place of x put pi by 2, तो ये हो जाएगा 2 into sin pi plus cot pi by 2 plus 2 और दूसरा का क्या हो गया 2 cos pi minus cos x square pi by 2। Now tell me what is the value of sin pi? 0, cot pi 0, pi by 2 0। तो यहाँ पे आ गया 2 into 2। cos pi कितना होता है? cos 180 कितना होता है सबको बताओ? cos 180 डिग्री minus 1 होता है, तो ये हो गया -2। एंड cos 90 कितना होता है? 1 होता है ना, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 ही। 2 2 जब 4 4 minus 3 4 into -3 -2। So this is the slope of tangent। तो क्या इसके आगे कंप्लीट कर लेगा तुम लोग? स्लोप ऑफ टैंजेंट मिल गया, पॉइंट मिल गया, तो इक्वेशन निकाल सकते हो ना तुम लोग टैंजेंट एंड नॉर्मल दोनों का। तो फटाफट कॉपी कर इसको जल्दी से। Now everyone note down, I'll explain you number 12, ठीक है? Sum number 12 is quite different, okay? एक बार ध्यान देना। एक्चुअली ये जो कंसेप्ट है ये पैरामीट्रिक फंक्शन बोल के एक डिफरेंशिएशन वाला टॉपिक था, उस पे बेस्ड है, बट डोंट वरी। जैसे आज मैंने y क्यूब का डिफरेंशिएशन बता के स्टार्ट किया है, पहले भी बताया था लेकिन फिर भी बता के स्टार्ट किया, वैसे हम करेंगे, डोंट वरी, जस्ट कंसंट्रेट instead of concentrating in here, I mean here and there other activities at home, please concentrate here, you will understand, believe me। तो ध्यान रखना। सबसे पहला चीज अपने लोग को यहाँ पे तुम लोग के भाषा में 2 इक्वेशन दिए, राइट? एक है x equals to cos t और दूसरा है y equals to cos 2t। बट एक्चुअली ये अगर तुम लोग बोलेगा कि दोनों का अलग अलग ग्राफ होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, दोनों का अलग अलग ग्राफ नहीं होगा, दोनों का एक ही ग्राफ होगा। हम तुम लोग को समझाते हैं डिफरेंस। तो ध्यान से एक बार नोट करना सबको। सबसे पहला पॉइंट कि ये दोनों जो अलग अलग जो तुमको दिख रहा है ना ये इक्वेशन, ये दोनों अलग अलग इक्वेशन दिख रहा है तुम लोग के भाषा में, लेकिन इसका 2 अलग अलग ग्राफ नहीं हो। ये मत सोचना कि इसका एक अलग ग्राफ होगा, इसका एक अलग ग्राफ होगा, मतलब ऐसा नहीं। ग्राफ तुम्हारा एक ही है, मतलब ये एक ही ग्राफ को 2 अलग अलग चीज रिप्रेजेंट करना बता रहे कैसे। क्या सपोज मान लो y इक्वल टू x स्क्वायर है, ठीक है? अगर मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना होगा
इतना अगर हम कॉम्प्लेक्स मतलब इतना टेक्निकली ना जाए तो एकदम मतलब सिंपल लैंग्वेज में एकदम मतलब बोलते हैं ना बच्चा वाला लैंग्वेज में अगर हम बोले कि इसको प्लॉट कैसे करना है तो सीधा तुम लोग ये बोलेंगे कि सर हम लोग इसको प्लॉट करने के लिए कोई पैराबोला कुछ भी हमको नहीं पता क्या है कुछ भी नहीं पता, तो प्लॉट करने के लिए तुम क्या दिमाग लगाएगा कि सर हम लोग बहुत सारा पॉइंट्स ले लेंगे, एक बार x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0 आ गया, एक बार x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू 1 आ गया, एक बार x का वैल्यू -2 तो y का वैल्यू 4 आ गया, यहाँ पे 1 का 1 आएगा और 2 का 4 आ जाएगा। मतलब इस तरह से तुम लोग अपनी भाषा में इस तरह से तुम लोग इसको इंटरप्रेट करेगा और बोलेगा कि सर इसको हम लोग बहुत इजीली प्लॉट कर देंगे, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4, उसके बाद -1 का -1 का 1, -2 का 4। ठीक है, इस तरह से अगर हम बस सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो मुझे इस तरह का फिगर मिल जाएगा जिसका नाम मैथ्स में पैराबोला होता है। मैथमेटिकली इसको हम लोग कौन सा फिगर बोलते हैं? टू डायमेंशनल फिगर, इट्स कॉल्ड अ पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, तो ठीक वैसे अगर मुझे बोला जाए ये क्या होगा सर, तो मैं तुमको एक बात बता दूं, इसको प्लॉट करने के लिए मैंने x का वैल्यू पुट किया और मुझे उससे y का वैल्यू मिल जा रहा था, तो हम लोगों ने उस पेयर और उस पॉइंट्स को मैंने प्लॉट कर दिया। सिर्फ ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि y का वैल्यू पुट कर दो, x का वैल्यू मिल जाएगा, वैसे भी हम प्लॉट कर देंगे, बात बराबर है। x पुट करो y मिल जाएगा, 2 पॉइंट मिल गया, या y पुट करके x निकालो, उससे भी पॉइंट मिल जाएगा, बात बराबर है। लेकिन व्हाट अबाउट x cos t and y sin t? नाउ लेट मी टेल यू, ये भी एक कर्व को डिनोट कर रहे हैं, लेकिन एक कर्व बोलो या बहुत सारा कर्व्स बोलो या लाइन बोलो, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर, कोई भी ज्योमेट्रिकल टू डायमेंशनल फिगर को प्लॉट करने के लिए बताओ तो उसका बेसिक कंपोनेंट क्या होता है? पॉइंट। बिना पॉइंट का प्लॉट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं प्लॉट कर सकते। और एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होता है, y कोऑर्डिनेट होता है। यहां पे x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट एक इक्वेशन से डिनोट किया जा रहा है, बट यहां पे क्या देखना एक बार, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों एक तीसरे चीज पे डिपेंडेंट है। मतलब जो कर्व के ऊपर जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट एक तीसरा चीज पे डिपेंडेंट है। वो यहां बता सकते हो तुम लोग इसको देख करके कि x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट किस पे डिपेंडेंट है? बताओ तो मुझे, किस चीज के वैल्यू पे डिपेंडेंट है? t पे डिपेंडेंट है। मतलब अगर मान लो इस तरह का ग्राफ को मुझे प्लॉट करना हो, इस तरह का ग्राफ को, तो मैं क्या करूंगा पता है? मतलब मैं मान लो t का वैल्यू 0 ले लिया, तो 0 ले लिया तो क्या आएगा? cos 0 1, sin 0 0, मतलब पॉइंट हो गया 1, 0। फिर मैंने t की जगह π/2 लगा दिया, तो x क्या आ जाएगा? cos π/2 0, sin π/2 1, मतलब दूसरा पॉइंट मिल गया 0, तो इस तरह करके बहुत सारा पॉइंट्स को हम प्लॉट करके ज्वाइन कर देंगे, कर्व मिल जाए, राइट। तो आई थिंक थोड़ा बहुत दिमाग में गए, इस तरह का फंक्शंस को बोलते हैं हम लोग पैरामीट्रिक फंक्शन। अब क्वेश्चन ये है कि जो भी है कर्व ही तो डिनोट कर रहा है ना, और कर्व के ऊपर एक स्पेसिफिक, क्योंकि टैंजेंट्स तो बहुत सारे हैं कर्व के ऊपर टैंजेंट्स तो बहुत सारे ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को वो टैंजेंट का इक्वेशन निकालना है जिस पे t का वैल्यू दिया हुआ है, क्या बताओ तो? π/4। समझ में आया? तो मतलब मुझे उस पॉइंट पे कर्व का उस पॉइंट पे टैंजेंट का इक्वेशन निकालना है जिस पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट का जो t जो है, t जो डिपेंडेंट होता है, x और y t पे डिपेंडेंट होते हैं, वो यहाँ पे t क्या है बताओ तो? π/4। समझ में आया मेरे बात? तो π/4 पे हमको निकालना है, तो ध्यान नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे देखना एक बार, we will put t equals to π/4, तो x क्या मिल जाएगा? x हो जाएगा cos π/4, that is, what is cos 45 degree? 1/2, and the y coordinate of the point will be sin π/4, that is 1/2. Is this clear to everyone? मतलब अपने लोग को पॉइंट मिल गया ना। देखो आराम से देखो, कोई भी चीज को अगर हम थोड़ा सोच समझ के करें और समझ के, तो इतना कुछ हम लोग को पास्ट कंसेप्ट मतलब क्या, अगर नहीं भी थोड़ा बहुत पता है तो क्लियर हो जाता है। अगर कंसेप्ट मतलब तुम्हारा, अगर वो हर चीज को तुमको दिख रहा है, विजुअलाइज कर पा रहा है, मतलब ग्राफिकली जो हम लोगों ने थोड़ा बहुत देखा, समझा, कोशिश की इसको समझने की, तो पॉइंट मिल गया 1/√2, 1/√2 पॉइंट मिल गया। मतलब अपने लोग को स्टैंडर्ड का अगर इक्वेशन चाहिए तो पॉइंट तो मिल गया, सिर्फ क्या चाहिए बताओ तो? स्लोप। अब स्लोप निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे देखना है। तो एक बात बताओ, स्लोप इज इक्वल टू व्हाट? स्लोप इज डिफरेंशिएशन में स्लोप किसको कहते हैं? dx at that point. करेक्ट,
dy by dx is called slope. तो याद रखना dx by dy नहीं, rate of change of y, मतलब y2 minus y1 by x2 minus x1 is slope, not x2 minus x1 by y2 minus y1. So that's why similarly dy by dx is called slope of a line. अब बताओ मुझे इस पैरामीट्रिक फंक्शन से, या नाम और भी छोड़ो, पैरामीट्रिक इसीलिए क्योंकि ये तीसरा पे डिपेंडेंट है, इसलिए पैरामीटर मतलब उसका तीसरा चीज पे डिपेंडेंट है x और y, इसीलिए उसको पैरामीट्रिक फंक्शन बोलते हैं। अब एक बात बताओ, मुझे dy by dx निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये x इक्वल टू ये y इक्वल टू, मुझे dy by dx निकालना, तो दोनों को t के रेस्पेक्ट में करना। Sir, we will place t in terms of x in the second equation. No, we don't have to do that much. Simply पैरामीट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए x को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर दूं। मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, डायरेक्ट में कर देता हूं। I'm differentiating x with respect to t, मतलब ddt of x is dx by dt. Can you tell me what is ddt Minus of sign. cos t? Minus sign. I'm asking ddt, याद रखना, don't get confused कि सर ddt तो आपने कभी बताया ही नहीं है कोई फॉर्मूला। अब मैं सारा फॉर्मूला बताऊंगा कि ddx of sin x अगर cos x होता है तो dy of sin y cos y होता है, ddt of sin t cos t होता है, ddx और ddz of sin z cos z होता है। क्या सब बताना पड़ेगा? नहीं, उसी फॉर्मूला से हमको दिमाग में आ जाना चाहिए कि चलो ये माइनस sin t होगा, एंड dy by dt क्या हो जाएगा? dy by dt हो जाएगा cos Cos t. Cos t. and finally dy by dx will be dy by dt को अगर अपने लोग dx by dt से डिवाइड कर दे, dy by dt को dx by dt से अगर डिवाइड कर दे, मतलब अगर cos t को माइनस sin t से डिवाइड कर दे तो हम लोग को dy by dx तो मिल गया, लेकिन स्लोप तो निकालना भी बाकी है, क्योंकि स्लोप निकालने के लिए एग्जैक्ट पॉइंट जो है जिस पे टैंजेंट लाई करता है उस वो पुट करना पड़ेगा। अब बात ये है कि क्या तुम लोग ये पॉइंट यहाँ पुट करेगा, ये पॉइंट पुट करेगा यहाँ पे, ये वाला पॉइंट नहीं, ये पैरामीट्रिक फंक्शन है, ये हम लोग पॉइंट भी निकाला हम लोग ने पैरामीटर को यूज करके, तो सिमिलरली स्लोप भी कैसे निकालेंगे? पैरामीटर को यूज करके निकालेंगे स्लोप। बात समझ में आ मेरी बात? मतलब पैरामीटर को ही यूज करके हम स्लोप भी निकालेंगे, समझ में आया तो बात? सो dy by dx at, we will find out dy by dx at t equals to pi by 4. So what is cot 45 degree? It is 1, तो आगे माइनस है, so dy by dx at t equals to pi by 4 Minus equal to 1. minus 1. This is the slope of tangent. So if slope of I tangent is didn't minus 1, understand why we took t in place of x and y. कहने का मतलब this is one thing you can understand this way. This is not the actually logical way, but ये तुम्हारा cot t है, तो हम लोग t कहाँ पुट करेंगे? तो x और y, हम लोगों ने x और y, अभी तो मैंने बताया तुम लोगों को कि we have x and y both depending on t, तो x और y निकालने के लिए t क्या है वो पुट किया। तो सेम में इस पॉइंट पे t इक्वल टू पाई बाय 4 पे जो पॉइंट मिला, उस पॉइंट पे टैंजेंट का स्लोप क्या होगा वो निकालने के लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग dy by dx at t equals to pi by 4 ही निकालेंगे। We cannot put x. Where is x here? Where is y? So we place according to the variable present in the equation. Actually, not. It's not like that. It's a parametric function. You have to understand this way. Okay, that it's a parametric function. So as the point is also dependent on this t, and the derivative and the slope of the tangent is also dependent on that t. Okay, तो हम लोग ने put करके slope निकाला. Slope आ गया, point आ गया, equation आ जाएगा. तो फटाफट इसको complete करो. चलो. Everyone note down. 3 का क्वेश्चन हमको 12. देखो 3 का क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, एक बार ध्यान देना. See, you are given a parametric function. What is the meaning of parametric function? ये जब मैंने डिफरेंशिएशन कराया था तभी मैंने ये चीज बताया था कि पैरामीट्रिक फंक्शन का मतलब होता क्या है. So suppose x equals to cos t है and y equals to sin t, and there is a point t equals to pi by 4. There is a point t equals to pi by 4, और हम लोग को इस पॉइंट पे हम लोग को टैंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है. तो सबसे पहले तुमको ये मुझे बताना पड़ेगा सबसे पहले कि ये टैंजेंट, ये इक्वेशन क्या है. पहले ये चीज मुझे समझाना बहुत जरूरी है. ध्यान देना.
तुमको पता है कि किसी भी कर्व को या किसी भी पॉइंट को प्लॉट करते हो तो वो पॉइंट को प्लॉट करने का दो कंपोनेंट्स होता है। करने के लिए हमको दो चीज पता होना चाहिए, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए और उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट दोनों चीज पता होना चाहिए, तब जाके हम लोग उस पॉइंट को प्लॉट कर पाएंगे। और अगर हम इस तरह का बहुत सारे पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं तो हम लोग को एक कर्व मिल जाता है, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे हमको एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो अलग अलग इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो यूजुअली क्या होता है, यूजुअली y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाता है। मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब तुम यहाँ पे अगर x के जगह पे 1 लगा दो तो तुमको उससे y का वैल्यू क्या मिल जाएगा 1, x के जगह पे 2 लगा दो तो उससे y का वैल्यू क्या मिल जाएगा 4। मतलब एक पॉइंट हो गया 1,1, दूसरा पॉइंट हो गया 2,4 और इस तरह अगर हम करके बहुत सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर दें तो हम लोग को एक कर्व मिल जाएगा, इस तरह का कुछ कर्व मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे कर्व को प्लॉट करने के लिए मतलब इसका अगर हमको ग्राफ अगर प्लॉट करना होगा, अगर हमको इसका अगर हमको ग्राफ बनाना होगा तो देखो ध्यान से, ग्राफ प्लॉट करने के लिए मतलब मुझे पॉइंट्स को प्लॉट करना पड़ेगा और पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए मुझे y का वैल्यू देने से x में निकल जाता है या x पुट करने से y मिल जाता है कि नहीं? लेकिन ये थोड़ा अलग टाइप का फंक्शन है, ये थोड़ा अलग टाइप का फंक्शन है जिसको बोलते हैं हम लोग पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक का मतलब क्या होता है कि जो x और y है दोनों एक पर्टिकुलर तीसरी चीज पे डिपेंडेंट होते हैं, दोनों जो है तीसरे चीज पे डिपेंडेंट होता है। यूजुअली अभी मैंने जो एग्जांपल एक दिया था क्या देखा था, बहुत सिंपल सा एग्जांपल था। जैसे कि मान लो ये भी अगर हम एग्जांपल ले, ये भी एग्जांपल दे तो यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू 1 लगा दे तो मुझे y मिल जाएगा, ठीक है ना, -2। लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्टी ये है कि जो पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट जो होगा जिससे कर्व को प्लॉट करेंगे वो कर्व का कर्व के ऊपर जो पॉइंट्स है उसका x और y कोऑर्डिनेट तीसरा चीज के ऊपर डिपेंडेंट है। क्या चीज के ऊपर डिपेंडेंट है? तीसरा चीज। वो तीसरा चीज यहाँ क्या है बताओ तो? t है। अब देखो मुझे क्या बोला है, बात को ध्यान से समझना कि ये कर्व के ऊपर जो पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट t पे डिपेंडेंट है, वो यहाँ पे t का वैल्यू क्या बताओ तो? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? प्लीज टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t जिस t पे जो x और y मिलेगा वो पॉइंट पे मुझे टैंजेंट का इक्वेशन निकालना होगा। तो वो क्या है t का वैल्यू जिस पे मुझे टैंजेंट ड्रॉ करना है? वो t का वैल्यू π/4 है। मतलब जब हम x के t का वैल्यू π/4 लेंगे, जब हम t का वैल्यू π/4 ले लेंगे तो मुझे उससे कॉरेस्पॉन्डिंग x का वैल्यू जो मिलेगा और जो उससे कॉरेस्पॉन्डिंग y का वैल्यू मिलेगा वो एक पॉइंट होता है। x कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1/√2 और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या होगा वो भी 1/√2। मतलब मुझे पॉइंट मिल गया बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इक्वल्स टू π/4 दैट इज 1/√2 1/√2। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन हियर, ठीक है? ये पॉइंट सबका क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब देखो इस पॉइंट पे यहाँ पर x और y एक्सिस और ऑर्डिनेट है। हाँ x और y तो हमेशा x एक्सिस ऑर्डिनेट ही होता है इस समय क्या हर समय x और y। नाउ सी, अब हम लोगों ने x और y का मतलब हम लोगों ने पॉइंट निकाल लिया। अब इस पॉइंट पे जो टैंजेंट है वो टैंजेंट का मुझे इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन निकालने के लिए हमको पता है फॉर्मूला होता है y - y1 = m * x - x1। ऑलराइट एवरीवन, तो हमको यहाँ पे x और y1 तो पता है, बट क्या नहीं पता हम लोग को? m का वैल्यू नहीं पता। अब देखो याद होगा मैंने m का वैल्यू निकालने का तरीका बताया था कि m निकालने के लिए पहले कर्व को डिफरेंशिएट करके dy/dx dx/dy नहीं, याद है ना? क्यों dy/dx बोला था निकालने के लिए, नॉट dx/dy, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे? पहले हम लोग को तुम लोगों को पता है कि ये किस तरह का फंक्शन है? पैरामीट्रिक। पैरामीट्रिक का मतलब हो गया कि x जिस पे डिपेंडेंट है y भी उसी पे डिपेंडेंट होता है। और वो जो डिपेंडेंट का जो बात कर रहे हैं ना, जो बार-बार डिपेंडेंट कि t पे जो जिस पे डिपेंडेंट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में मुझे दोनों को डिफरेंशिएट करना होता है। यू नो पैरामीट्रिक फंक्शन में ये चीज तुम लोग ने सीखा था। तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, हम लोग x को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर देंगे। सो नाउ डिफरेंशिएटिंग x विद रिस्पेक्ट टू t, अगर हम x को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर दें तो dx/dt क्या आ जाएगा? dt ऑफ cos t हो जाएगा -sin t।
ओके और अगर हम उस दूसरे पार्ट को भी डिफरेंशिएट कर दें एंड differentiating y with respect to t, तो sin t का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos t, यहाँ पर क्या होगा sin minus sin t. So now dy by dx, what will be dy by dx? Dy by dx will be dy by dt by dx by dt. dy by dt is cos t and dx by dt is minus sin t. लेकिन अपने लोग को निकालना क्या है, देखो ये पैरामीट्रिक फंक्शन है, स्लोप निकालना है, m निकालने के लिए dy by dx निकालने से नहीं होगा, dy by dx 8, तो यहाँ पे 8 क्या है बताओ तो, at t equals to pi by 4, क्योंकि पैरामीट्रिक फंक्शन है, याद रखना इस तरह का फंक्शन ये समझ में ना, मतलब जो हम लोगों ने लास्ट डे किया था. तो अगर अब हम लोग dy by dx at t equals to pi by 4 निकालेंगे, अगर हम t की जगह pi by 4 लगाएंगे तो ये जाएगा cos pi by 4 by minus sin pi by 4. What is cos pi by 4 minus sin pi by 4? -1 आएगा, चेक कर, क्योंकि स्लोप ऑफ टैंजेंट. ओके फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर हम लोग pi by 4 लगाएंगे यहाँ पे तो cos 45 डिग्री 1/√2 होता है, sin 45 डिग्री -1/√2 होता है, आई मीन 1/√2 होता है, माइनस से आगे तो आंसर -1. ये हो गया स्लोप ऑफ टैंजेंट. अब सुनना एक बार, स्लोप पता है और पॉइंट भी पता है, क्या हम इक्वेशन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला y minus y1 equals to m into x minus x1. All right everyone, so everyone complete this up. Hurry. Therefore the required equation is, therefore the required equation of tangent line is y minus y1 equals to m into x minus x1. इधर एलसीएम ले लेना, ठीक है, और राइट साइड में भी एलसीएम ले लेना. Okay, so we find that root 2 gets cancelled, so we have root 2y minus y equals to minus root 2x plus 1. That is root 2 into x plus root 2 into y minus 2 equals to 0 is the required equation of tangent. और अगर तुमको नॉर्मल का इक्वेशन निकालना होगा तो क्या करोगे बताओ तो, अगर नॉर्मल का इक्वेशन निकालना होगा तो बताओ तो क्या करना है एनीवन? तो स्लोप 1 हो जाएगा बस, और बाकी पॉइंट तो सेम ही रहेगा, ठीक है. तो इसके ऊपर ही बेस्ड है तुम्हारा नंबर 13 और 14, जो 3 का नंबर 13 और 14 है तो इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है. तो लास्ट डे हम लोगों ने ये टाइप का सम किया नहीं था तो शायद इसीलिए डाउट हो रहा होगा तुम लोगों को. अब शायद हो जाएगा नंबर 13 एंड 14, राइट? अब 13 एंड 14 शायद हो जाएगा, यस और नो? यस सर, 14 का आंसर नहीं आया मेरा. अच्छा मैं एक बार 14 करके, अच्छा मैंने नॉर्मल नहीं बताया, यहाँ पे कर लेना तुम लोग. अच्छा मैं 14 का तुम लोग को आंसर बताता हूँ, मतलब बिना एक्सप्लेन किए हुए फटाफट सॉल्व वर्किंग दिखाता हूँ मैं, ठीक है, कि तुम लोग अपना आंसर कंफर्म कर दो. So See the next sum, that is number 3 का 14. सर cos pi by 4 root 2 होता है ना. 1/. So see, you are given x equals to theta plus sin theta, okay, and you are given y equals to 1 plus cos theta. और एक पॉइंट हम लोग को क्या निकालना है, टैंजेंट का इक्वेशन है थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4. तो सबसे पहले हम पॉइंट निकाले थे, जो कर्व है, कर्व के ऊपर पॉइंट जो है, पॉइंट का पॉइंट पहले हम निकालें. तो पॉइंट निकालने के लिए लेट अस पुट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4. सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू पाई बाय 4 प्लस sin पाई बाय 4. So what is the value of sin 45 degree? It is 1/√2.
and what is the value of y? It is 1 plus cos pi by 4, and again cos pi by 4 is 1 by root 2. तो उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या आ गया 1 plus 1 by 2. मतलब पॉइंट मिल गया हम लोग को pi by 4 plus 1 by root 2 comma 1 plus 1 by root 2. ये तुम्हारा पॉइंट हो गया। अब हम लोग को पॉइंट मिलने के बाद स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालने के लिए तुमको पता है पहले dy by dx निकालते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं व्हाट इज dx by d theta, कैन यू टेल मी व्हाट इज dx by d theta? थीटा इज द पैरामीटर, सो dx by d theta क्या होगा 1 plus cos theta, और dy by d theta क्या होगा dy by d theta क्या होगा minus sin theta। ठीक है, ये हो गया। नाउ dy by dx will be dy by d theta by dx by d dy by d theta is minus sin theta। ठीक है, अब dy by dx निकालने के बाद मुझे स्लोप निकालना होगा। तो स्लोप निकालने के लिए we have to find out dy by dx at theta equals to pi by 4। If I put pi by 4 here, we will get minus sin pi by 4 by 1 plus cos pi by 4। sin 45 मतलब 1 by root 2। take LCM, so we find that dy by dx at theta equals to pi by 4 is minus 1 by 1 plus 2, and what is this? This is the slope of tangent। तो स्लोप ऑफ टैंजेंट भी मिल गया और हम लोग को पॉइंट तो पता ही है, तो इक्वेशन निकाल। हमको पता है कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आंसर तो जरूर आएगा, बट आंसर यही है। Therefore, the required equation of tangent is given by y minus y1 equals to m। m मतलब हो गया minus 1 by 1 plus root 2 into x minus x1। What is x1? It is pi by 4 plus 1 by 2। इसको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई कैसे करोगे? एक काम करना, सबसे बेस्ट यहाँ पे एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा √2 plus 1 by √2। यहाँ पे भी एलसीएम ले लेना, तो ये हो जाएगा √2 pi plus 4 by 4 √2। ठीक है, अब पूरा कैंसिल लो। ये हो जाएगा √2 into y माइनस ब्रैकेट के अंदर √2 plus 1। एक एलसीएम ये हो जाएगा 4√2x माइनस ब्रैकेट के अंदर √2 pi plus 4। नाउ √2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। थोड़ा देखो पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे तो फिर वहीं पे छोड़ जाओगे। ठीक है, तो 4√2 इधर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, 4√2 सॉरी 4 और ये पूरा मल्टीप्लाई हो गया। समझ में आया? 4 into 1 plus √2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ, और यहाँ पे बचा माइनस ब्रैकेट के साथ, ब्रैकेट को हटा दो, माइनस को मल्टीप्लाई, ये हो गया माइनस 4√2x माइनस माइनस प्लस √2 pi प्लस। इसको दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 4√2 into 1 plus √2y माइनस 4। व्हाट इज 1 plus √2 into 1 plus √2? It is 1 plus √2 का होल स्क्वायर। अब बस सारे को लेफ्ट में लिखे, तो ये क्या हो जाएगा
4 root 2x plus 4 root 2 into 1 plus root 2y minus 4 ब्रैकेट में 1 plus root 2 का होल स्क्वायर माइनस root 2 pi plus 4 equals to 0। अब इसको सिंपलीफाई कर देना if भी होल स्क्वायर लगा के, बाकी और कोई सिंपलीफिकेशन का यहाँ पे जरूरत नहीं, ठीक है, और कोई सिंपलीफिकेशन का नहीं। सो दिस इज एन आंसर। इस तरह का जो वियर्ड कैलकुलेशन वाला सम है एग्जाम में आने का चांसेस बहुत कम है, डोंट वरी, मतलब कुछ ज्यादा ही मतलब अजीब तरह का कैलकुलेशन है, डोंट वरी। सो इस तरह का सम एग्जाम में आने का बहुत बहुत रेयर चांस है, बहुत रेयर, नहीं आएगा। So sum number 4 is very important sum. You mark my word that in exam, if you get a bit complex sum in exam, this is the one you will get. That is for sure, 100%. So इसीलिए सम को अच्छे से देखो। देखो यहाँ पे क्या है, you are given two equations. यहाँ पे अपने लोगों को दो इक्वेशन दिया गया है, एक है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, ये एक इक्वेशन है, और एक इक्वेशन दिया हुआ है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक बात मुझे सबसे पहले ये बताओ, तुम अब बाकी क्वेश्चन को मत देखो, यहाँ ध्यान देना मेरे बात एक का आंसर हो सबको कि पहला वाला इक्वेशन ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा वाला इक्वेशन ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करेगा। पहला कर्व वाला, ठीक है, पहला वाला कर्व है, दूसरा वाला स्ट्रेट लाइन, ठीक है, बिकॉज पहला वाला नॉन लीनियर इक्वेशन है तो ये कर्व है, और दूसरा वाला लीनियर इक्वेशन है, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो अगर मान लो मैं कर्व को यहाँ पे ड्रॉ करूं ऐसे, बस जस्ट टू रिप्रेजेंट, सपोज, और इसका नाम मैंने इक्वेशन 1 दे दिया, और लाइन 2 यहाँ पे मैं अगर ड्रॉ करूं तो ये तुम्हारा कर्व हो गया, ये लाइन। ठीक है, अब देखो आगे क्या क्वेश्चन में लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ tangent to the curve such that the tangent drawn is parallel to the line। देखो क्या लिखा हुआ, tangent drawn is parallel to the line, मतलब अपने लोग को tangent का इक्वेशन निकालना है such that ये जो tangent होगा ये लाइन से पैरेलल होगा। ठीक है, क्या होगा, एक दूसरे से पैरेलल होगा। तो सबसे पहले देखो एक बात, अगर मुझे ये रिक्वायर्ड tangent का इक्वेशन निकालना है, ये अब अपना रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है, ये है रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसका अगर मुझे इक्वेशन निकालना है तो मुझे उसके लिए दो चीज पता होनी चाहिए, एंड व्हाट आर दोस टू थिंग्स, एक तो पॉइंट जिससे ये पास हो रहा है, और दूसरा ये लाइन का स्लोप पता होना चाहिए। मतलब टैंजेंट का अगर इक्वेशन निकालना है तो मुझे उसके लिए एक पॉइंट पता होना चाहिए और दूसरा उसका स्लोप पता होना चाहिए। अब देखो इस सम में ना मुझे टैंजेंट का स्लोप पता है और ना ही मुझे उसके ऊपर एक पॉइंट पता है, तो मैं क्या करूंगा, देखना एक बार, पॉइंट जो है मैं ले लूंगा p x1, y1, और टैंजेंट का स्लोप को मैं m से डिनोट कर दूंगा। अब देखो मुझे m तो बहुत इजीली दिख रहा है, मिल जाएगा, क्यों बताओ तो, क्योंकि ये लाइन, ये जो टैंजेंट लाइन है और ये जो गिवन लाइन है एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है। तो जब दो लाइन से एक दूसरे से पैरेलल होता है तो दोनों का स्लोप क्या होता है बताओ तो, इक्वल होता है कि नहीं। तो मैं इस गिवन लाइन का इक्वेशन से मैं इसका स्लोप निकाल सकता हूं, यू नो हाउ, बाय एक्सप्रेसिंग इन द फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस c। तो अगर मैं इसको y इक्वल टू mx प्लस c में एक्सप्रेस कर दिया तो बताओ तो ये लाइन का स्लोप क्या होगा, ये लाइन का स्लोप क्या हो गया, 2 हो गया लाइन का स्लोप। अगर ये लाइन का स्लोप 2 है तो बताओ तो ये टैंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, ये लाइन का स्लोप अगर 2 है तो टैंजेंट का स्लोप क्या होगा 2। ठीक है, मतलब अपने लोग को क्वेश्चन मार्क मिल गया क्या होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब हम लोग को चाहिए x1 का वैल्यू और y1 का वैल्यू। अब x1 और y1 का वैल्यू निकालने के लिए देखो यहाँ पे दो क्वांटिटी है, दो अननोन क्वांटिटी है, मतलब दो चीज ऐसे है जो हमको पता नहीं है। तो अगर हमको दो चीज नहीं पता है तो उसको निकालने के लिए दो इक्वेशन का जरूरत है। अगर मान लो मैं तुमको बोल दूं कि x1 प्लस y1 इक्वल्स टू 3 और मैं अगर पूछूं कि x1 और y1 का वैल्यू क्या है, तुम कभी आंसर दे पाओगे, एक एग्जैक्ट आंसर दे पाओगे? नहीं। क्या एग्जैक्ट आंसर होगा? नहीं दे पाओगे, क्योंकि तुम्हारा अगर मान लो y1 का वैल्यू तुम 1 दो तो उससे तुमको x1 मिल जाएगा, दैट इज ट्रू, बट तुम एग्जैक्ट क्या होगा वो नहीं बोल पाओगे ना। ठीक है ना, तो एग्जैक्ट आंसर होने के हम लोग को इस तरह का और इक्वेशन होना चाहिए।
समझ में? तब जाके इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हम लोग को एक यूनिक वैल्यू मिलेगा x1 का और एक यूनिक वैल्यू मिलेगा y1 का। तो अब हम देखो क्या करेंगे, हम दो इक्वेशंस निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ x1 एंड y1। मतलब अभी हमारा ऑब्जेक्टिव है टू गेट टू इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ x1 एंड y1। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान देखो, मुझे ये टैंजेंट मतलब ये टैंजेंट का स्लोप पता है जिसका वैल्यू 2 है। अब ये वैल्यू पता है, मैं एक और तरीके से ये स्लोप निकाल सकता हूं। कोई बता सकता है मुझे एक और तरीके से मैं टैंजेंट का स्लोप कैसे निकाल सकता हूं? How to find out the slope of any tangent which lies on the curve at the point x1 y1? How to find out slope? तो वो फर्स्ट वाला इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। Absolutely correct. कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे। So now differentiating equation 1 with respect to x. मतलब अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को जो चीज पता है वही चीज वापस से निकाल रहे हैं। जो चीज पता है वापस से वही चीज निकाल रहे हैं, पर तरीका चेंज कर देते हैं और अब दोनों को इक्वलाइज करेंगे। ठीक है, सो नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या मिल जाएगा, dy by dx इक्वल्स टू 2x minus 2 और 7 का डेरिवेटिव 0। सो व्हाट इज dy by dx एट x1 y1? It is 2x1 minus 2. This is the slope of tangent at p x1 y1। और अगर देखो तो ये जो हम लोगों ने निकाला है ना, ये वैल्यू, ये जो निकाला है हम लोगों ने, इसका एक्चुअल वैल्यू मुझे पता है। ये जो हम लोगों ने निकाला है x1 y1 के टर्म्स में, इसका हम लोग को एक्चुअल वैल्यू पता है या नहीं है? बताओ 2 है। तो हम इसको क्या करेंगे, इक्वल टू 2 करेंगे। लेकिन हुआ क्या देखना एक बार, यहां से अपने लोग को डायरेक्ट x1 मिलेगा। मतलब इसको सॉल्व करके अब बात क्या है देखो, अगर मान लो सपोज 2x1 इक्वल्स टू 4 है, तो ऑब्वियसली उस एक इक्वेशन से तो हमको x1 मिल ही जाएगा। अब बताना मुझे x1 का वैल्यू अगर 2 मिल गया, तो हाउ टू गेट द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y1 एट दैट पॉइंट, बता सकते हैं? समझ में आया? वो इक्वेशन में पुट करेंगे। एब्सोल्युटली करेक्ट। ये पॉइंट को अगर हम x कोऑर्डिनेट को x के जगह पुट कर देंगे तो मुझे उसका कॉरेस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा कि नहीं? ठीक है, पहले भी हम लोगों ने देखा। सो व्हेन x1 equals to 2, the value of y which you get is 2 का square minus 2 into 2 plus 7, and what is the value of y? It is कितना? 7। हाँ 7। तो ये जो y मिला 2x1 पुट करके 2 जो y मिला, वो y क्या डिनोट कर रहा है? y1 को डिनोट कर रहा है। मतलब हम बोल सकते हैं y1 मिल गया हम लोग को 7। अब बोलोगे सर आपको वैल्यू y का मिला और आप बोल रहे हो y1 मिल गया, कैसे? हम बता रहे तुमको, ये x1 का कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू y1 है। तो जब तुम x1 पुट किया तब तो तुमको जो y मिला वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? y1 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं पॉइंट मिल गया अपने लोग। वो पॉइंट क्या है? कौन? 7। अब बताओ पॉइंट मिल गया और स्लोप भी पता है, तो क्या हम इक्वेशन निकाल सकते हैं टैंजेंट का? Therefore the required equation of tangent is y minus y1 equals to m into x minus x1। और याद रखना, अगर तुमको ये सब समझ में आ गया, you mark my word, एग्जाम में तुम यहां से 4 मार्क्स सिक्योर कर लिए, that is for sure। You can, आज का क्लास खत्म होने के बाद लास्ट का 5 इयर्स पेपर निकाल के तुम चेक कर सकते हो, पर तुमको ज्यादातर ये टाइप का ही सारा, ठीक है? तो एक बार ये कॉपी करो फटाफट, एक बार ये कॉपी करो। ना देखो, मैं बस एक कॉपी करने से पहले एक चीज पे बस बता, बस जो सम नंबर 4 का जो बी पार्ट है ना, बी पार्ट, उसमें कर्व सेम है। बस इसमें जो पैरेलल बोला ना ये वाले सब ने, उसमें क्या बोला बताओ? तो परपेंडिकुलर बोला। बस इतना ही डिफरेंस है। तो एक बात बताओ, अगर मान लो मैं सपोज ये बोलूं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट perpendicular to the line whose slope is minus half. So can you tell me if the slope of this line is minus half? What will be the slope of this line? 1 by r। Simple 2। इतना तो दिमाग नहीं लगाना, सिंपल 2 होगा। क्यों 2 होगा? क्योंकि जब दो लाइंस एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। मतलब हम अपने दिमाग में ये बोल सकते हैं कि अगर एक का स्लोप 2 होगा तो दूसरा का स्लोप उसका रेसिप्रोकल और साइन चेंज, तब तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर -1 आएगा। तो अगर इसका स्लोप -1/2 है तो इसका स्लोप 2 होना चाहिए, तब जाके दोनों का प्रोडक्ट -1 आएगा। तो तुम लोग को सम नंबर 4 का बी खुद करना है अभी, और उसमें यही लॉजिक लगाना है, ठीक है? यही लॉजिक लगाना है कि वो परपेंडिकुलर होगा टैंजेंट दूसरा लाइन से जिसका इक्वेशन दिया हुआ।
बस इतना ही डिफरेंस। अब मैं चाहता हूं कि बिना कुछ पूछे हुए ये सम को कॉपी करो और पहले तुम वो सम को अपने दिमाग से सॉल्व करो, अगर हो गया तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। ठीक है, एक बार कॉपी करो। सर हमको एक सम से डाउट नहीं है, सर हमको से बात पूछो। Now I want everyone to pay attention and see sum number 5 का नंबर 5 का 2 मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले तुम लोग खुद मत करो, पहले आराम से यहाँ देखो। 5 का क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे हम लोग ने 4 नंबर किया था वैसे ही यहाँ पे हम लोग को एक कर्व दिया हुआ है पहले, मतलब you are given a curve which is 2x square plus 3y square equals to 1 for 40, and you have a line which is x plus 3y equals to 4. So this is clearly a line and this is a curve. देखो एक बार, एक कर्व दिया हुआ है और एक लाइन दिया हुआ है। हम लोग को टैंजेंट कर्व के ऊपर एक टैंजेंट लाइन का इक्वेशन निकालना है such that this tangent is parallel to line. अगेन ये हो गया तुम्हारा रिक्वायर्ड लाइन, ये हो गया रिक्वायर्ड लाइन जिसका हम लोग को इक्वेशन निकालना है। तो अगेन इक्वेशन निकालने के लिए मुझे दो चीज चाहिए, एक पॉइंट चाहिए और दूसरा हम लोग को इसका स्लोप चाहिए। स्लोप क्योंकि इससे पैरेलल है और जिस लाइन से पैरेलल है लाइन का इक्वेशन दिया हुआ, उस लाइन का अपने लोग को इक्वेशन दिया हुआ। तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये लाइन का स्लोप जिसका इक्वेशन दिया हुआ है वो -1/3 है, तो फिर ये लाइन का स्लोप भी -1/3 ही होगा। यस एंड नो, लेकिन पैरेलल है। अब देखो हम लोग को यहाँ पे दो चीज चाहिए, x1 और y1 कराना। तो ठीक पिछले सम जैसे ही हम लोग इक्वेशन निकालने के मतलब रिलेशनशिप निकालने के लिए x1 और y1 का हम लोग क्या करेंगे, एक बार इस टैंजेंट का स्लोप एक और मेथड से निकालेंगे, पता है बाद में, लेकिन हम एक और मेथड से निकालेंगे। वो कैसे? फाइंडिंग dy by dx by differentiating equation 1 with respect to x. So we get ddx of 2x square is 4x, 3y square में 3 कांस्टेंट है बाहर और y square का 2y into dy by dx। आई थिंक बोला नहीं है तुम लोग ये चीज, है ना? y square का डेरिवेटिव क्या होगा, 2y into dy by dx। So dy by dx is -4x divided by 6y, and dy by dx at x1 y1 जिससे तुमको टैंजेंट स्पेसिफिक टैंजेंट का कर्व पे जो लाइन कर रहा है उसका स्लोप मिल जाएगा। एंड यू नो दैट ये जो आया है वैल्यू ये किसके बराबर है एक्चुअली, इट इज इक्वल टू -1/3। -1 कैंसिल होगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, and if you cross multiply you get y1 equals to 2x4. let us mark it as equation number 3. अब देखो पिछले वाले टाइप का जो सम तुम लोग दोनों किया होगा, पैरेलल मैंने बताया, परपेंडिकुलर तुम लोग किया, उसमें डायरेक्टली यहां से कुछ ना कुछ मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं मिल रहा है। y1 और x1 दोनों के टर्म्स में आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे देखना एक बार, एक और इक्वेशन निकालेंगे दैट इन टर्म्स ऑफ x1 y1। कैसे निकालेंगे देखेंगे। अब तुम एक बात बताओ, ये पॉइंट कर्व के ऊपर लाई कर रहे हैं, ये कर्व के ऊपर लाई कर रहे हैं, डू यू एग्री? एब्सोल्युटली क्लियरली लाई कर रहे हैं। सो सिंस p x1 y1 lies on the curve, so can I say that 2x1 square plus 3y1 square is equals to 1 for 40? ठीक है, समझ में आया बात? मतलब हम लोगों ने क्या किया, क्योंकि ये पॉइंट कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, ये पॉइंट को x के जगह पे और y के जगह पे मैंने x और y की जगह पे इक्वेशन में पुट कर दिया, इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 एंड 4 को सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4 we get, so put the value of y1 equals to 2x1,
So we have 2x1 का स्क्वायर हो गया 4x1 स्क्वायर, 4 3 जा 12, 12x1 स्क्वायर, 12x1 स्क्वायर इक्वल्स टू 14, 14x1 स्क्वायर इक्वल्स टू 14, x1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1. So what is x1? x1 is plus minus 1. मतलब x1 का वैल्यू क्या है? प्लस माइनस 1. ठीक है. अब एक बात बताओ, अगर मुझे x1 का वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गया तो उससे कॉरेस्पॉन्डिंग y1 का वैल्यू क्या मिलेगा? कैसे पुट निकालेंगे? डेफिनेटली इक्वेशन 3 या 4 इसमें ही पुट कर दो, बिकॉज़ ये भी x1 y1 का रिलेशनशिप दिखा रहा है और ये भी x1 और y1 का ही रिलेशनशिप को शो कर रहा है. तो हम एक काम करते हैं, हम 4 में पुट करते हैं. हम यहाँ पे 4 में पुट करते हैं. ठीक है. ध्यान रखना. मैं यहाँ पे x1 का वैल्यू को 4 में पुट करूँ. मुझे दिख रहा है कि 3 में पुट करके बहुत इजीली आ जाएगा, लेकिन इसके पीछे भी रीजन है. Suppose if I put x1 equals to 1 here in equation number 4, let's say, अगर हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो मुझे उससे y1 क्या मिलेगा? y1 मिल जाएगा प्लस माइनस 2. और जब हम यहाँ पे x1 का वैल्यू -1 पुट करेंगे तो इससे हम लोग को y1 स्क्वायर से ही चीज मिलेगी. तो y1 मिल जाएगा प्लस माइनस 2. Now the question is, you got 4 points. Check once. एक है 1,2, एक है 1,-2, एक है -1, +2 and एक है -1, -2. Now the question is कि कौन सा पॉइंट यहाँ पे, मतलब एक मिनट जस्ट ट्राई करें. अब बात ये है, देखो सुनो ध्यान से, इक्वेशन 4 और 5, 3 और 4 में अगर तुम 4 में पुट कर रहे हो ना x1 का वैल्यू, तो उससे जो y1 मिल रहा है 2 आ रहा है. x1 अगर तुम यहाँ पुट कर रहे हो तो उससे y1 2 आ रहा है. मतलब इसमें पुट करने से 4 पॉइंट्स आ रहे हैं. लेकिन तुम अगर ध्यान से एक चीज देखोगे तो यहाँ पुट करने से सिर्फ 2 ही आंसर आ रहे हैं. चेक करो तो यहाँ पुट करने से 2 आंसर आ रहा है कि नहीं? मतलब x1 यहाँ 1 पुट करोगे तो y1 क्या मिलेगा? 2 ये आ रहा है. और जब हम x1 -1 पुट करेंगे तो y1 क्या मिलेगा? -2 ये आ रहा है. मतलब ये आंसर और ये आंसर नहीं आ रहा है. मतलब क्या ऐसा कभी भी, मतलब देखो कहने का मतलब है कि इसमें पुट कर रहे हैं तो मतलब 4 नहीं मिल रहा है, 2 आंसर आ रहा है, और इसमें पुट करें तो हम लोग को सिर्फ इसमें 4 आंसर आ रहा है. अब कहने का मतलब है कि क्या ये वाकई में 4 आंसर्स पॉसिबल है या नहीं है? देयर इज अ क्वेश्चन मार्क. ऑब्वियसली दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो आंसर दोनों से सेम आना चाहिए. अब ध्यान से नोट करें, इस केस में मैंने एक्चुअली जानबूझ के इक्वेशन में पुट किया, बिकॉज़ अगर मान लो तुम खुद करोगे घर पे तो इस तरह का एक प्रॉब्लम अराइज होता. तो देखो ध्यान से, ये एक्चुअली और ये वाला जो पॉइंट है ये पॉसिबल नहीं है. उसका कारण बता. तुम देखो एक बार, ये जब पॉइंट को तुम यहाँ पे पुट करेगा तो सैटिस्फाई कर रहा है. देखो प्लीज चेक बॉक्स. इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ x1 इक्वल्स टू 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंड y1 इक्वल्स टू -2? क्या -2 इक्वल्स टू 2 पॉसिबल है? नहीं, नॉट इक्वल. अगर हम x1 का वैल्यू -1 और अगर हम y1 का वैल्यू -1 पुट करेंगे, आई एम सॉरी, x1 अगर हम -1 पुट करें और y1 अगर हम -2 पुट करें, ये तो सैटिस्फाई करेगा. ये वाला नॉट इक्वल टू, मतलब ये दोनों पॉइंट्स इस इक्वेशन को सैटिस्फाई नहीं कर रहे. तुम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों पॉइंट्स इस इक्वेशन को सैटिस्फाई नहीं कर रहे. तो क्या लिखोगे तुम लोग? देखो ध्यान से. Since 1, -2 and -1, 2 does not satisfy equation 3, therefore 1, 2 and -1, -2 are the required points. मतलब अपने लोगों को कितना टैंजेंट्स का इक्वेशन निकालना बताओ तो? कितना टैंजेंट्स का इक्वेशन मिलेगा? 2 टैंजेंट बन सकते हैं. ठीक है, 2 टैंजेंट. केस 1 एंड केस 2. केस 1 जब पॉइंट हो गया 1, 2 और स्लोप हो गया, क्या था स्लोप बताओ तो? टैंजेंट -1/3. और केस 2 जब पॉइंट होगा -1, -2 एंड स्लोप जब -1/3. एक बार ये पॉइंट और ये स्लोप लेके इक्वेशन निकालो टैंजेंट का, एक बार ये पॉइंट और ये स्लोप लेके टैंजेंट का इक्वेशन निकालो. मतलब तुमको 2 इक्वेशन टैंजेंट का मिलेगा कर्व के ऊपर, जिससे
जिसपे जब तुम टैंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो इससे पैरेलल होगा, मतलब इससे टैंजेंट ये इससे पैरेलल होगा, ये वाला टैंजेंट जो निकालोगे तो वो भी इससे पैरेलल होगा। सर क्या मतलब ये दोनों टाइम एवरीवन नोट डाउन। अभी तुम लोग सम नंबर 5 का 4 करो तो, सॉरी 5 का नंबर 5, सॉरी 5 का 5 अभी। Okay, find the points on the curve, but the tangents are perpendicular to the line. यहाँ पे मैंने पैरेलल वाला क्वेश्चन किया था, वहां पे तुम लोग को परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन दिया गया, और यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स निकालना है, इक्वेशन भी नहीं निकालना। चलो क्लासिक से वो 4 पॉइंट मतलब सिर्फ पॉइंट्स निकाल के छोड़ दो, आगे इक्वेशन नहीं निकालना। तो चलो फटाफट करो तो 5 का 5। So everyone complete this sum, okay?